یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر جو زلیخا لٹو ہو گئی تو شہر کی عورتوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوا کہ یہ لٹو کیوں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری بیگم صاحبہ وہ فلاں سے بڑی فری ہو کے بات کرتی ہیں، وہ غیر محرم مرد ہے، وہ کہتی ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو، لیکن یہ یاد رکھو کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ لٹو ہو سکتا ہے. اس کے لیے میرڈ ہونے یہ شرط نہیں ہے، انسانی جذبات کسی بھی وقت پھسل سکتے ہیں. احتیاط کرو. بیگم سے بولو جب تمہارا کوئی لگتا نہیں ہے تو کیوں باتیں کر رہی ہو بھائی، اس سے لگتا ہو تو نہیں کرنی چاہیے زمانے میں، سوائے بھائی جو محرم رشتے ہیں بس، اس کے علاوہ نہیں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو شیخ جوان ہو، جوان لڑکی اس سے اصلاحی تعلق بھی قائم بولو بھائی نہ کرے، نہ وہ شیخ اور مرشد اگر جوان ہے، ینگ ہے، تو جوان لڑکی کو اس سے اصلاحی تعلق میرے خیال میں اس زمانے میں درست نہیں، کیونکہ وہ شیخ آدمی پہلے ہے، شیخ بعد. واقعات ہر جگہ ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو نہ ہوا یہ لٹو ہو جائے گی، شیخ صاحب کی آواز بہت اچھی ہے، اسٹائل بہت اچھا ہے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، اور لٹو ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. شیخ صاحب نے کون سا اس سے شادی کرنی ہے؟ یا تو چلو لٹو ہوئی، شیخ صاحب کو کہا میں لٹو ہو گئی ہوں آپ پر، شیخ صاحب نے کہا چلو اسلام میں 4 کی اجازت ہے، دوسری آپ سے ہو جائے گی، وہ بھی شیخ صاحب نے کرنا نہیں ہے، تو فائدہ کیا؟ بہت سارے فتنے ہمارے سامنے آئے. یونیورسٹی میں پروفیسر سے تعلق ہو گیا لڑکی کا، پروفیسر صاحب 50 سال کے، لڑکی ابھی 20 سال کی، اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بھائی جو بھی آدمی ہے نا، یاد رکھو، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، وہ آدمی پہلے ہے، عالم مفتی بزرگ پروفیسر ڈاکٹر انجینئر بولو نا بعد میں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو احتیاط. کسی نے کیا کہا ہے نا کہ اگر رابعہ بصریہ جو اللہ والی تھی، اتنی بڑی بزرگ خاتون تھی، وہ اور حضرت حسن بصری جیسے بزرگ تنہائی میں جمع ہو جائیں تو شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہاں بھی وار کرے گا. یہ نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے انسان، نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ایک فلاں بزرگ ہیں، وہ لڑکیوں سے احتیاط ہی نہیں کرتے، دائیں بائیں لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں ان کے، اور تو ان کے مریدوں سے ہم نے کہا کہ آپ کے جوان جوان لڑکیاں صبح شام آپ کے بے پردہ ہو کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں، کوئی آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، تو آپ کے شیخ صاحب احتیاط نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا ہمارے شیخ صاحب بہت بزرگ ہیں، بہت کیا ہیں، نیک. مجھے بتا رہے تھے، میں نے کہا وہ آدمی ہے یا نہیں ہے پہلے یہ بتاؤ. اگر آدمی نہیں ہے تو بزرگ ہونے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے، پھر جتنے بھی برے ہوں بٹھا دو. اگر آدمی ہے اور پھر یا آدمی ہو اور اتنی لڑکیاں دائیں بائیں گھوم رہی ہوں اور ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو کچھ مسئلہ ہے پھر ان کے ساتھ، پھر ان کی بیوی کو بھی اعتراض ہوگا ان کے اوپر. تو نیچر سے نہیں لڑو میرے بھائی، جو تمیز سے زندگی. اسلام دین فطرت ہے. اسلام کیا ہے؟ دین فطرت. اس نے وہ باتیں نہیں کی ہیں جو ہوائی آسمانی باتیں ہوں. اور دوسرا اس زمانے میں وہی بات جو میں گھوم گھوم کے بار بار لاتا ہوں کہ نکاح تو کرتے ہی نہیں ہے، محاسبوں مراقبوں پہ چل رہا ہے سارا سیٹ اپ. نکاح کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بھائی، آدمی بہت نگاہیں جھک جاتی ہیں. بزرگ کی 4 شادیاں ہیں، پھر بٹھا دو گے، امید ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ خوراک اسی طرح چل رہی ہے، انڈے پراٹھے، تو وہ پھر ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ ورغلائے گا. تو زلیخا پر جو شہر کی بڑے خاندان کی جو عورتیں تھیں، ان کو اعتراض یہ نہیں تھا کہ یہ لٹو کیوں ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ذوق نظر کے بلند ہونے کو میں سمجھا رہا ہوں، سارا اسی میں نہ نکل جائے ذوق نظر میں ٹائم. ان کو اعتراض اس پر تھا، امرأۃ العزیز، مصر کے بادشاہ کی بیوی، تراود فتاہا، ایک گھر کے نوجوان پہ، لڑکے پر جو غلام بن کے رہ رہا ہے اس پر عاشق ہو گئی. انا لنراھا فی ضلال مبین، بڑی سخت غلطی میں پڑی ہوئی ہے. یہاں مطلب کیا ہے کہ اس کا ذوق محبت بلند نہیں ہے، معاذ اللہ گھٹیا سوچ کی عورت ہے. بادشاہوں کی بیویاں نوکروں پہ تھوڑی عاشق ہوتی ہیں، گھر کے لے پالکوں پہ تھوڑی عاشق ہوتی ہیں، اس شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی، کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہوتی ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ تو جن کا ہاں، وہ پھر بادشاہ کی بیوی نے جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی تاکہ پتا چلے کہ ہمارا ذوق نظر تم سے کم از کم بہتر ہے، بہت بہتر ہے.
وہ تو उसने तो पूरी बात की होगी, कुरान ने तो मुख्तसर जिक्र किया है ना। उसने तो बुला के जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवाई और औरतों ने अपने हाथ काट डाले और कहने लगी हाशा लिल्लाहि मा हादा बशर, अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, आसमान से कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है जो जमीन पे उतर गया, ये इंसान नहीं है। जैसे ही उन औरतों ने हाथ काट डाले अपने, ऐसे मदहोश हो गई ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के, हाथ काट डाले तो फौरन, और ये कहा कि अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, तो इस मौके पर जुलेखा को फौरन 1 सेकंड भी उसने तवक्कुफ नहीं किया और इशारा किया ज़ालिकल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, ये है वो जिसके बारे में कह रही थी कि मेरा ज़ौक़े मोहब्बत बुलंद नहीं है, ये है वो, अब बताओ है या नहीं है। फिर आगे भी बोला तू जो गोले गंडे वाले पे आशिक हुई थी, तुझे अपना याद नहीं है भाई, तू जो वसीम तरबूज वाले पे आशिक हुई थी, हैं मुझे ताने, औरतें फिर इसी तरह ना भर भर के तपाती हैं एक दूसरे को, अपना भूल गई, जो ड्राइवर के साथ भागी थी तू, 6 महीने बाद पकड़ी गई थी। तो फज़ालिकल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी, अब बताओ मलामत बनती है। उन्होंने कहा नहीं भाई मलामत नहीं बनती। इससे एक और बात पता चलती है कि अल्लाह ने जो हुस्न मर्दों को दिया है वो औरतों को माजरत के साथ, आपसे नहीं खवातीन से। हमारे हजरत फरमाया करते थे अल्लाह ने हर जिन्स में नर को ज्यादा खूबसूरत बनाया है। सकता है कि अशरफुल मखलूकात जो इंसान है उसमें मादा को नर से ज्यादा हुस्न दे दिया हो, ऐसा नहीं है। मोर ज्यादा खूबसूरत है या मोरनी? मोर, लेकिन मोर को अच्छी मोरनी लगेगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल होके देखें तो मोर में हुस्न ज्यादा है। तो अल्लाह का एक निजाम है बनाया हुआ। तो अगर कोई न्यूट्रल होके देखे ना, यानी इंसान के अलावा कोई और मखलूक देखे, तो फिर वो ये फैसला करेगी कि इंसानों में भी मर्दों में हुस्न औरतों से ज्यादा है। वो क्यों है, वो एक लंबी कहानी है। फिर कैसे आप कहेंगे नहीं भाई वो तो इतने बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी, वो चंगेज खान का छोटा भाई, वो कहां से हो गया? हुस्न और जमाल अलग अलग चीजें हैं। जमाल हुस्न से ऊपर की चीज है। अल्लाह ने मर्दों को जमाल दिया है, जमाल। इस कायनात के सबसे जमील साहिब जमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और हुस्न अल्लाह ने अकेला यूसुफ अलैहिस्सलाम को जितना दिया, हदीस में आता है कि मैंने मेराज की रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधा हुस्न अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया है, बाकी आधा पूरी दुनिया में तकसीर। हम लोग में थोड़े थोड़े कुछ हल्का फुल्का सा नूर आया हुआ है ना हम लोगों के चेहरों पे, ये वो आधे के करोड़ों अरबों हिस्से किए अल्लाह ने। तो उन अकेले को कितना मिला होगा? ये मोजज़ा था उनका। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, हमारे हजरत ये शेर पढ़ा करते थे, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। भाई तू कितने ही ज्यादा हसीन पर मरे, लेकिन उसने मरना तो है ना एक दिन। तो आपके हुस्न का मैयार कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, उसके बाद भी अल्लाह की नजर में आपका मैयार ऊंचा नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज पे मर रहे हैं ऐसी चीज से मुतासिर हो रहे हैं जिसने खुद मरना है। मर रहे हो ऐसों पे जो खुद मरेंगे, तो बेवकूफी की बात है या नहीं है? एक आदमी के बारे में फैसला है कि इसने मरना ही मरना है, आग में चल रहा है। अगर आप आग में छलांग लगा के उसको बचा सकते हो आप छलांग लगाएं, लेकिन आपको पता है कि मैं जब आग में छलांग लगाऊंगा इसको बचाने के लिए 100% यकीन है ये फिर भी नहीं बचेगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा इसके साथ। तो लोग कहेंगे ना कि जो मरने वाला है खुद उस पे क्यों मर रहा है तू? तो भाई दुनिया में जितनी खूबसूरत चीज हो, बिल्डिंगें, आजकल ये इश्क मार्केट में जरूरत से ज्यादा चल गया है, क्योंकि बदनजरी दबा के हो रही है। स्कूलों में को एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत हो रही है, टीचरें फीमेल टीचर्स देख रही हैं, वो लड़कों पे आशिक हो रही हैं। जो बड़ी उम्र की आंटियां हैं उनको जब ये लौंडे लपाड़े स्कूल में नजर आते हैं, नौजवान फ्रेश चेहरे, इनको अपने मियाँ क्या लगते हैं, अजीब से लग रहे होते हैं, आड़े तिरछे लग रहे होते हैं, ठीक है ना। कंप्लेन्स आती हैं, वो इस पे आशिक हो रही हैं, वो किसी पे आशिक हो रहा है, वो क्लास फेलो पे आशिक, वो पड़ोसों को, क्योंकि पर्दा भी माशरे में खत्म और बदनजरी को बुरा नहीं समझा जाता। किसी लड़की को लोग देख रहे होते हैं ना नौजवान, वो थैंक यू कहती है, शुक्रिया, हमें भी इस काबिल समझा कि आपने हमें देखा। पहले किसी खातून को कहते आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, उठा के जूता मारती थी। अब ड्रामो फिल्मों ने यह सिखाया है कि आप किसी खातून से कहें आप माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो क्या कहेगी? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चल रहा है मार्केट में, नहीं चल रहा? तो ऐसे मौके पे होलसेल के हिसाब से इश्क, बोलो भाई फैल जाए। हम रो रहे हैं कि मकानों से दिल ना लगाओ, हम रो रहे हैं गाड़ियों से दिल ना लगाओ, दौलत से दिल ना लगाओ। लोग कह रहे हैं असल टेंशन तो
ये है खुदकुशियां जो सबसे ज्यादा हो रही है ना, आप तहकीक करो हमारे मुल्कों में जो खुदकुशी हो रही है, इनमें सबसे ज्यादा खुदकुशी से मरने वाले नाकाम आशिक हैं। समझ रहे? नाकाम आशिक अंजाम नहीं देखते भाई। अंजाम क्या होगा इसका? मैं जो लोग, जैसे मैं उर्दू ड्रामा का मशवरा उन लोगों को देता हूं ना जो पहले से बुरे ड्रामे देख रहे हैं, तो मैं कहता हूं उससे बेहतर ये देख लो। तो ऐसे ही मैं एक मशवरा उन लोगों को देता हूं जो फिल्में देख रहे हैं, उनको मैं एक मशवरा देता हूं कि जो तुम जो हीरोइंस देख रहे हो ना, खूबसूरत खूबसूरत, 1975 की हीरोइंस निकाल के देखो, या 1974 या 76 की, और अब देखो 2020 में कैसी लग रही है वो। नहीं आ रही बात? 1974 की जब शक्ल देखोगे आपको लगेगा कि इससे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई है नहीं, और काश मुझे ये मिल जाए। 2020 में देखोगे आप बोलोगे यार मेरी नानी इससे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अल्लाह करे मेरे नाना को भी ना मिले। अगर नानी का इंतकाल हो गया तो मैं अपने नाना की शादी भी इससे कराने के लिए तैयार। मेरे नाना इससे ज्यादा हैंडसम है। और इन हीरोइनों पे ज्यादा जल्दी बुढ़ापा आता है क्योंकि इनकी नेचुरल लाइफ नहीं, बच्चे तो पैदा किए नहीं होते इन्होंने, तो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। नेचुरल लाइफ नहीं है ना इनकी, ना वक्त पे शादी होती है, ना बच्चे पैदा होते हैं तो एक आध पैदा हुआ ब्रेक, वो जाहिर है वो फिर फितरत से बगावत का अंजाम क्या होता है? बुरा होता है, जल्दी बुढ़ापा आता है। कब तक चलेंगे इंजेक्शनों पे और वो रंग के डब्बों पे? कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में? कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। शायर कहता है कि तुम हमसे छुपती हो, महबूबा से कहता है। लुंडा बाजार में हर आदमी आता है कि नहीं आता? तारिक रोड वाले भी जाते हैं लुंडा बाजार, डिफेंस वाले भी जाते हैं, बहरिया टाउन वाले भी जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वही चीज। जब मैंने एक दफा तारिक रोड से ओरिजिनल जैकेट खरीदी लेदर की, लोग कह रहे लुंडा बाजार की है, मान नहीं रहा कोई। मैंने कहा आइंदा लुंडा बाजार से ही खरीदूंगा और बोलूंगा तारिक रोड की है, फिर मान जाएंगे। क्योंकि लुंडे के माल में और तारिक रोड के माल में कोई साहिब बसीरत हो तो वो ऐसी चीज उठा के ले आएगा, लुंडे से कोई फर्क पता नहीं चलता। इसलिए शायर ने क्या खूब कहा, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार। तो भाई कब तक इस डिस्टेंपर की और ये इसकी वजह से अपनी फिजिकल जो फिटनेस है उसको बरकरार रखोगे? और अल्लाह की कुदरत की खवातीन पे बुढ़ापा और भी जल्दी आता, क्योंकि इन पे मरने वाले ज्यादा होते हैं ना, तो अल्लाह इनको जल्दी मारता है। इनके हुस्न और जमाल ने लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को खराब किया होता है, तो इसलिए अल्लाह कहते हैं इनको जल्दी खराब करूंगा ताकि ये इबरत का निशान बने। तो 1974 तो बहुत पुराना हो गया। 80 में चले हैं, 90 में चले हैं। कोई 90 की हीरोइन लिख के फिर 2020 में देखो इसको आप कैसी लग रही है। गूगल पे लिखें आप कैसी लग रही है। गूगल तो ऐसा होशियार है, जो लिखो बता देता है, सब कुछ बताता है गूगल। तो वो पूरा बता देगा कैसी लग रही है, लिखा भी बोलेगा बता। नीचे ये भी कमेंट्स आएंगे गूगल के, बता। तो भाई वो क्या दोबारा शेर पढ़ लूं कि अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। बुलंद उन लोगों का नजर का ज़ौक़ होता है जो ऐसी चीजों पे मरते हैं जो हमेशा आपके साथ रहें। नापाक मोहब्बतें कब्र में साथ नहीं जाती, पाक मोहब्बतें जाती हैं। माँ बाप की मोहब्बत कब्र में काम आएगी कि नहीं आएगी? बीवी से मोहब्बत भी काम आएगी, भाई बहनों की मोहब्बत भी, बोलो भाई, काम आएगी। ये जो गर्लफ्रेंड की मोहब्बत है ये यही, और वो भी 2-4 दिन रोएगी, उसके बाद उसकी सेटिंग फौरन, बल्कि हो सकता है उसी वक्त चल रही हो, आपको पता ना हो, ये भी मुमकिन है। तो मैं सुना दूं, दोबारा बहुत दफा सुना चुका हूं, लेकिन नए नए लोग भी आते हैं ना। एक आदमी की शादी हुई, खुद हजारों से दोस्तियां थी, लेकिन बीवी ऐसी चाहिए थी इंतहाई पाक दामन, कि जिसने कभी आंख उठा के किसी मर्द की तरफ ना देखा हो। आजकल मैयार यही है ना कि खुद पता नहीं क्या क्या करके आया हुआ होता है। जब शादी हुई है तो फिर ये अपनी बेगम से कहने लगा, आज से तुम मेरी कायनात, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत। ये बेचारा वैसे ही मसरत राहत, वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता रहे हैं। कह रहे आज से तुम ही मेरी चाहत भी, तुम ही मेरी राहत भी, तुम ही मेरी मसरत भी, तुम ही मेरी कायनात भी। ठीक है, फिर आज से सत्तार भी तुम, गफ्फार भी तुम, सलीम भी तुम और वसीम भी तुम। वो हैरान है कि क्यों क्या रहा है। तो ये है वो मोहब्बतें जिस पे लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। वफा नहीं है यार, वफा के डायलॉग इसकी अलामत नहीं है कि वफा है। देखो पाकीज़ा रिश्ता, जितना पाकीज़ा रिश्ता अल्लाह ने वालिदैन और औलाद का बनाया, खुदा की कसम इससे ज्यादा पाकीज़ा रिश्ता हो नहीं सकता। मां का रिश्ता, बाप का रिश्ता, कैसा प्यारा रिश्ता है भाई, उसमें मर नहीं रहे।
बाप नाराज है तो स्ट्रेस में नहीं जा रहे, डिप्रेशन में नहीं जा रहे, कैसे दिल हो गए हैं भाई? टाइम पास है ये दुनिया, दिल लगाने की जगह नहीं है। तो एक और हजरत मजदूब रहमतुल्लाह अलैह थे ना, वो भी एक शेर कहा करते थे, बड़ा मशहूर शेर है उनका, रंग रलियों पे जमाने की ना जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाजे बहार आई है। बाज दफा आती खिजा है, स्टाइल बहार वाला होता है। होती वो क्या है? बोलो ना भाई। स्टाइल से लोग धोखा खा जाते हैं। बालों का स्टाइल बड़ा अच्छा होता है, ऐसा लगता है इनसे ज्यादा नेक दुनिया में कोई है नहीं, उसी स्टाइल में वो आपको ठगते हैं। दुकानदार देखो ना, उठाते हैं, बैठाते हैं, आपको आ जाए। स्टाइल क्या होगा आपके लिए? ये आपसे चूंकि खास ताल्लुक है, इसलिए आपके लिए ये गाय, आजकल कुर्बानी का चल रहा है ना, तो गाय ज्यादा आ रही है दिमाग में, आपके लिए गाय 1 लाख की। स्टाइल ऐसा होता है, आदमी कहता है मेरे लिए, आम लोगों के लिए शर्ट 2.5 लाख की हो, मेरे लिए क्या है, हालांकि वो पहना रहा होता है आपको। तो स्टाइल से धोखा ना खाया करो मेरे भाई। ये जो दुनिया है ना, दुनिया, जब आप जाते हैं बड़े इलाकों में, बड़े बंगलों में, आपके दिल में चाहत पैदा होती है। मेरे साथ अल्लाह का एक खास करम है, अपनी तारीफें मिंबर पे बैठ के नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर अल्लाह ने कोई एहसान किया हो तो मेरा ख्याल है इबरत के लिए बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। तो और हम कोई इतने नेक हैं भी नहीं कि यहां बैठ के तारीफें करें, कोई अमल ही नहीं है हमारे पास तो बताने के लिए। एक चीज है, मैं किसी के बंगले में बैठ के उससे मुतासिर अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं होता कि इसका इतना अच्छा बंगला क्यों, इतनी अच्छी ये हो। मैं कहता हूं ये बेचारे की जिंदगी देखो, ईंटें देखो यार क्या है, इतना पक्का घर है भाई, इतना काफी है। इलाका जरा साफ सुथरा हो, मच्छर ना हो, गंदगी ना हो, गटर लाइनें ना बह रही हो, पानी का सेटअप हो, बस काफी है। मंजी डाल के पंखा लगाओ, वो पिडिसल फैन नहीं होता, वो ऐसी हवा फेंकता है कि कमजोर आदमी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो क्या ख्याल है? और मंजी पे सोने का जो गर्मियों में मजा है, वो गद्दे पे सोने में नहीं है। नीचे से भी हवा, साइडों से भी हवा, ऊपर से भी हवा। तो इतनी मजे की जिंदगी अल्लाह आप सबको दे रहा है भाई, क्यों बंगलों से मुतासिर? यार इतना घर बना लिया उसने, बहरिया टाउन में ये कर लिया उसने, उधर ये कर लिया, हाय मेरे पास। दफा करो भाई, क्या है? उसको नहीं देख रहे जो रहने वाला है, उसके घर को देख रहे हैं। रहने वाले को देखो, रहने वाले को देखो, बोलो यार इसकी बाजू में, इसके बाजू में कैल्शियम ज्यादा है या मेरे बाजू में? फिर अपने बाजू देखो करो, यार अल्लाह का शुक्र है भाई। हमारी रूह जिस बॉडी में रहती है, उसका स्ट्रक्चर अगर मजबूत है तो आप मिट्टी के घर में भी रहते हो, आप उससे ज्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहे हो। और जो सेठ साहब बंगले में रह रहे हैं, उनका जो अपना फिजिकल स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो अगर आपसे कमजोर है तो भाई इतने मोटे मोटे भी सरिये डाल लो, थोड़े दिनों में पतली गली से निकलना है। एक अटैक आएगा और साहब जी का इंतकाल होगा। मकान को देख रहे हैं, मकीन को नहीं देख रहे, रहने वाले को नहीं देख रहे, सारा फोकस उसके मकान को किया हुआ है। आपका बेडरूम इतना बड़ा, ताना भी दे रहे होते हैं ना, अबे हमारा तो लेटरिन वॉशरूम जो है ना तुम्हारे बेडरूम से ज्यादा बड़ा है। ये तानेबाजी भी चल रही होती है, जैसे वो फसादी औरतें आपस में ताने दे रही होती है ना एक दूसरे को, इस तरह मर्द ताने दे रहे होते हैं। फसादी औरतें का है, वो औरतें नहीं का जो मेरा बयान सुन रही हैं। तो बिल्कुल दीवारों ईंटों से तो दिल लगाना, बोलो ना, है ही। आज सुबह हमने हदीस पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसद इल्ला फित्नतैन, हसद जायज नहीं है सिवाय 2 आदमियों पे। 2 आदमियों पे आप हसद करो। हसद किसे कहते हैं? आदमी देख के जलता है ना, यार कुछ है इसके पास। तो बंगले वाले पे हसद करना, ये क्या है भाई? कुछ भी नहीं है उसके पास भाई। बहुत आप कह सकते हैं इतना बड़ा बंगला है, तो खुद इतना बड़ा नहीं है ना, मसला सारा ये है। अगर आपकी सेहत उससे अच्छी है तो आप ज्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहे हो। आप आम की पूरी पेटी खा सकते हो। सेठ साहब, एक आम से ज्यादा खाना पड़ा तो पहले एक टीका शुगर का लगाना पड़ेगा। आप पूरी पूरी पेटियां फोड़ देते हो, क्योंकि आप जो रात को मच्छर जो आपका खून चूसेंगे, उसमें सारा आम निकल जाएगा। हकीकत है मीठा ज्यादा खाओ तो मच्छर भी ज्यादा आते हैं, वो पसीने में निकल जाएगा। तो पहले भाई अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाओ यार। अगर रहने का दुनिया में शौक है तो रहने के लिए बंगला थोड़ी जरूरी है, रहने के लिए इस बॉडी को मजबूत करना जरूरी है। उस पर जरा भी तवज्जो नहीं। पेट काट काट के जो बादाम खाने के पैसे थे वो मकान की किस्त में लगा रहे हैं। हकीकत है। डॉक्टर ने कह दिया बकरे का गोश्त खाओ, बड़ा गोश्त से परहेज है। बकरा कैसे खाएं भाई? इसलिए नहीं खा सकते कि आपकी किस में जा रही है, बहरिया टाउन में जा रही है। वो जो रहने वाला है वो अपनी हड्डियों को फोकस नहीं कर रहा,
وہ اس مکان میں لگا رہا ہے وہ پیسے, اس کو بادام کھلا رہا ہے, اس کو دیسی گھی بھی پلا رہا ہے مکان کو. تو پاگل پنے کی باتیں ہیں یہ. تو کسی کے مکان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ہے, بلکہ اور الٹا الجھن ہوتی ہے کہ کیا ہے یہ بیٹھے میں. ایک صاحب 60 سال کے تھے, مجھے اپنا مکان دکھا رہے تھے. میرا مکان دیکھیں آپ, ماشاءاللہ میں نے ایک پلاٹ وہاں بھی لے لیا ہے. زیادہ ہو گئی, میرا دل چاہا, میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ 60 سال کے ہیں اور آپ کی صحت سے لگ رہا ہے کہ ایک آدھ سال مزید آپ بونس پہ چلیں گے, تو اب اس عمر میں یہ باتیں بالکل بھی اچھی, بولو بھائی, بالکل بھی اچھی چھوڑو یار. بچوں کو دے دلا کے فارغ کرو, لے بھائی اب مجھے آرام سے اللہ اللہ, تاکہ ٹینشن ختم. اور اگر خطرہ ہے کہ بچے لے کے بھاگ جائیں گے تو پھر حساب کر کے رکھ لو, دو نہیں ان کو, لیکن بولو بھی میرا نہیں ہے, بس ہمارا جتنا تھا وہ کھا لیا ہم نے, بہت ہو گیا. تو وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز باہر آئی ہے. تو یہ خزاں کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. دنیا جب اپنے جاہو جلال کے ساتھ آتی ہے نا, تو ایک بڑا فالٹ اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتی ہے, اور بے وفا سے محبت کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ہم دنیا داروں کی موجودہ حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے مستقبل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں, یا بلکہ اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ مل جائے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ چلا ہے نا, کیا جاہو جلال اس کا, اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ جایا کرتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا دار لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا, ہائے کاش. آج بچے کیا کہتے ہیں, یار کاش ہمارے ماں باپ کی کیا سوچ ہے, ہمارا بچہ بھی اتنا بڑا آدمی بنے. بڑے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پیسہ آ جائے اس کے پاس, یہ مطلب ہوتا ہے بڑے کا. ہائے کاش یہ ہو جائے, ہائے کاش. تو وہی دیکھ کے نا قارون کے خزانے اور جاہو جلال اور اس کی عزت دیکھ کے ہائے کاش ہمیں بھی ایسا کچھ ملتا. سارے گولے گڈے والے اور جتنے غریب لوگ ہیں سارے یہ بیچارے کہہ رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے حقیقت میں علم دیا, وہ علماء جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, انہوں نے کیا کہا, ویلکم, تمہارا ستیہ ناس ہو. یہ گالی تھی, گالی جب نکالی جاتی ہے جب بہت ہی کوئی بری بات کر رہا ہو, تمہارا ستیہ ناس ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ کوئی قابل رش چیز ہے؟ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. ثواب اللہ خیر, جو اللہ بدلہ دے گا ایمان والوں کو وہ اس سے بہتر ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے قارون کو زمین میں دھسایا ہے نا, تو وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے نا ہائے کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے, تو فوراً کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ لَوْلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, اللہ کا احسان ہو گیا کہ ہم بچ گئے, ہمیں اتنا پیسہ نہیں ملا. یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں نا کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا ہے, جب آخرت میں زیادہ تر دولت مند جہنم میں جائیں گے, سارے نہیں, زیادہ تر کون جائے گا, پیسے والے لوگ, وہ زیادہ جہنم میں, کیونکہ عیاشی زیادہ انہوں نے کی ہوگی,